or it would be helical depending on whether the velocity is perpendicular to the field or it is at some general angle. तो on the basis of that, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो and then we'll discuss further. कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है. The magnetic field of yours starts from here. This is the region in which the magnetic field exists. ये magnetic field है and magnetic field is directed inwards. This is your region of magnetic field. Magnetic field की value है B. ठीक है, B Tesla, and that magnetic field is directed downwards. और यहाँ से आपने किसी charge particle को magnetic field में फेंका. The charge particle enters in the magnetic field from here. The charge is Q, mass is M. ठीक है, and the particle enters with velocity V. ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, unmute yourself and tell me one thing. Unmute yourself and tell me one thing. कि what would be the path of this charge particle? इस charge particle का path कैसा होगा? On which path it will move? मतलब whether the path would be circular or will it be a straight line? What kind of path will be for the charge particle? बोलो. Magnetic field is inwards. Very good. इतना डर के क्यों बोला? Obviously circular, because still the magnetic field is inward and the velocity is along x-axis and magnetic field is along negative z-axis. तो इनका मतलब है कि magnetic field and velocity both are perpendicular to each other. तो hence the path would be circular. Whenever velocity and magnetic field becomes perpendicular, the path will become circular without any doubt. But एक बात याद रखिए. That circular path need not be complete circle every time. मतलब वो जो circular path है, वो always it will be a complete circle is not necessary. ठीक है, वो semi circle भी हो सकता है, वो quarter of a circle भी हो सकता है. It can be an arc of the circle also. ठीक है, but वो complete circle होगा, it is not mandatory. वो mandatory नहीं है, वो complete circle होगा, ये जरूरी नहीं है. जैसे यहाँ पर situation समझो. This charge particle enters and it experiences, obviously it will be experiencing a force in this direction. और ये कैसे पता चला आपको सर? तो ये आप पता कर सकते हो by Fleming left hand rule, which you all know. तो ये force इसको deflect कराएगा, charge particle will be deflecting like this, charge particle deflect करता हुआ ऐसे निकल जाएगा. ठीक है, मतलब अगर थोड़ा मैं इसको बेहतर तरीके से बनाऊं, तो charge particle इस पे ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ निकल जाएगा. मतलब undoubtedly it will come out on a circular path, but this circle will be a semi circle beta. क्यों semi circle? Why it will not go in the circular path here? Because इस side पे कोई magnetic field नहीं है. Try to understand. इधर कोई magnetic field नहीं है. इस region में, because on the left we don't have any magnetic field, so there would be no force which can deflect the path of the charge particle. Did you understand or not? देखो, अगर इसी को हम well inside the magnetic field फेंकते, तुम समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर रखते, यहाँ पर वेलोसिटी देते, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाज ऑन आइदर साइड. तो इधर से भी चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्सेस लग रहा है. जब चार्ज पार्टिकल इस रीजन में आया तब भी इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हियर इट विल कंप्लीट द सर्कल. बट यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ज पार्टिकल देखो, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम के तो यहाँ तक पहुंचा, बट जब वो यहाँ पहुंचेगा तो ये ऐसे जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इसको कोई डिफ्लेक्ट कराने वाला नहीं है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, बिकॉज देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड. Did you understand or not? Tell me yes or no. क्या हो गया? बोलो ना. हाँ बच्चों, अरे Yes, sir. ये बात समझ में आई जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ? Did you understand this or not? Yes, sir. चलो, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ. तो अगर आप समझ गए तो can you tell me कि why there will not be a complete circle here? Why the circle would be only semi-circle or half of the circle will be here? Why the charge particle will not go on the complete circle in this case? बोले बोले, समझ गए हो सब कुछ तो बताओ. चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो, is not present. yes of course, very good. Magnetic field is only present in half of the region, but on the left of this magnetic, there is no magnetic field.
hence there will be no force to deflect the path of this charged particle on the left side, hence it will come out. यहाँ से जब वो बाहर निकलेगा ना तो ये ऐसे सीधा चला जाएगा, मतलब there will be no magnetic field to deflect its path. ठीक है, तो इस केस में it will form a semi circle. अब अगर इस केस में मैं पूछ लूं आपसे कि what will be the time after which this charged particle will come out, ये सेमी सर्कल बनेगा ना, ये वाला पाथ कैसा होगा, सेमी सर्कल. याद रखो अभी भी सर्कल ही बना, बट उस सर्कल का क्या बना, हाफ, दैट इज सेमी सर्कल. ठीक है, उस सर्कल का क्या बना, हाफ, दैट इज यू विल गेट सेमी सर्कल. अगर इसमें कोई टाइम पूछ ले कि आफ्टर व्हाट टाइम दिस चार्ज पार्टिकल विल कम आउट, तो इसमें टाइम की वैल्यू क्या होगी, तो सर पूरे में जो टाइम की वैल्यू होती है, पूरे के लिए जो टाइम की वैल्यू होती है, याद करो वो 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी होती है. याद आ रहा है? अच्छा पहले मैं इधर रेडियस लिख देता हूं. रेडियस अभी भी कितना होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला अभी भी आप mv डिवाइडेड बाय क्यूबी लिखेंगे. एज लॉन्ग एज द पाथ इज सर्कुलर, तो उसके रेडियस का फॉर्मूला यही होगा, भले पूरा सर्कल नहीं भाई बन रहा हो, ऑल्दो यू आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट सर्कल, बट रेडियस का फॉर्मूला तो यही होगा. और रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, तो इट वुड बी mv डिवाइडेड बाय क्यूबी. रेडियस का फॉर्मूला यही होगा, mv अपॉन क्यूबी. क्लियर हो गई बात? अब आते हैं दूसरी बात पे कि टाइम क्या होगा सर, टाइम. तो इस केस में अगर आप टाइम की बात करेंगे तो टाइम विल बी इक्वल टू, देखो पूरे के लिए टाइम होता था 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी होगा. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? भाई अगर पूरा सर्कल कंप्लीट Yes. करता है तो उस केस में टाइम पीरियड 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी आता है. बेटा आप देख लेना पीछे फॉर्मूला. तो यहाँ पर आधा सर्कल कंप्लीट हुआ है, तो आधे सर्कल का जो टाइम होगा, आधे सर्कल का जो टाइम होगा दैट वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ दैट 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी, दैट मींस पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी. ये नोट करिए. इसका मतलब मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर कि हमेशा यू विल गेट अ कंप्लीट सर्कल इज नॉट नेसेसरी. सर्कल कैन बी कंप्लीट और इट कैन नॉट बी कंप्लीट, इट डिपेंड्स. Then वेरी गुड. एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग कर दो, उसके बाद फिर मैं आगे के डिस्कशन पे आता हूँ. एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम फोर्स ऑन अ कंडक्टिंग वायर निकालेंगे. तो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस द फोर्स ऑन द कंडक्टिंग वायर एंड ऑल. तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से. सर क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपका बेसिकली ये है कि देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला. ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और एक चार्ज पार्टिकल है which enters this magnetic field with a velocity of 4 into 10 to the power 5 meter per second, making an angle of 60 degree with the magnetic field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दे आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, आपको इसमें कुछ चीजें बतानी है. आपसे बोला गया कि मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इसमें एक और पैरामीटर दे देता हूं. इसमें बोला है कि मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज 1.6 into 10 to the power minus of 27 kg. ठीक है, तो आपको कई सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है. पहला आपको कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द पाथ. दूसरा आपको कैलकुलेट करना है इसमें दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है आपको, तो आपको कैलकुलेट करना है पिच. ठीक है, दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, रेडियस कैलकुलेट करना है और पिच कैलकुलेट करना है, दो चीजें. आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस और पिच वर्ड क्यों यूज हो रहा है? आप पहले मुझे बताओ कि व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल. इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? विल इट बी सर्कुलर, और विल इट बी अ स्ट्रेट लाइन, और विल इट बी अ हेलिकल पाथ? helical. वेरी गुड, इट वुड बी हेलिकल पाथ विदाउट एनी डाउट. और हेलिकल पाथ का रीजन क्या है सर? तो हेलिकल पाथ का बिल्कुल सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एट सम जनरल एंगल. तो एज लॉन्ग एज यू हैव द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल एंगल, तो पाथ वुड बी हेलिकल. तो अगर पाथ हेलिकल होता है बच्चे, तो आपको मालूम है कि हेलिकल पाथ का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि चार्ज पार्टिकल विल गो लाइक दिस, और यहाँ पे दो सर्कुलर पोर्शन के बीच का जो सेपरेशन है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द टू सर्कुलर पाथ्स, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज पिच. इसी को हम पिच का नाम देते हैं. अब आपको एक बात और याद करो, मैंने आपसे बोला था कि इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट अगर हम करेंगे, ये वाला एंगल 60 डिग्री है,
तो इसका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, तो एक कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आएगा। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द चार्ज पार्टिकल गो ऑन द सर्कुलर पाथ, और पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल मेक द चार्ज पार्टिकल टू मूव फॉरवर्ड। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आप लिख सकते हैं v sin ऑफ 60 डिग्री, और पैरेलल वाला कंपोनेंट लिख सकते हैं v cos ऑफ 60 डिग्री। मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को आप लिख सकते हैं v sin 60 डिग्री, और पैरेलल वाले कंपोनेंट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस हम लोग लिखते हैं mv डिवाइडेड बाई qb। तो m इंटू v की जगह v परपेंडिकुलर लिख लो qb, ये आएगा रेडियस का फॉर्मूला। तो रेडियस की वैल्यू आप लिखेंगे m की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27। v परपेंडिकुलर मतलब v परपेंडिकुलर वाला sin 60 मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 5, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 60 की वैल्यू होती है सर √3/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कहां गया, √3/2 डिवाइडेड बाय व्हाट, तो ये तो हो गया सर m, ये हो गया m, ये हो गया v का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय qb चार्ज। चार्ज की वैल्यू मैंने नहीं दिया ना आप लोगों को, ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम ले लो चार्ज की वैल्यू। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चार्ज की वैल्यू आप लोग 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ले लो। डिड यू सी दिस? तो अब यहाँ पर नीचे चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, चार्ज की वैल्यू आपने पुट कर दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने आपको दे रखा है 0.3 टेस्ला। इज इट क्लियर? तो without any doubt this 1.6 and this 1.6 will cancel out, without any doubt this 2 and this 2 will go, तो will become 2। तो रेडियस की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा 2√3, और ये 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर माइनस 27 मतलब 10 टू द पावर माइनस 22 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√3 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय इस पावर को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। अब इस 2√3 को फिर फर्दर आप सॉल्व कर लेना, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो 1.73 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.3 करके देख लेना, जो भी आ जाए इतना मीटर विल बी योर रेडियस। इज इट क्लियर? अग्रीड विद दिस? हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। ठीक है सर, आपने कहा है तो मैं मान लेता हूँ। दूसरी चीज क्या फाइंड करना है, व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट द नेक्स्ट पिच। आप में से कोई मुझे बताएगा हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पिच? पिच की वैल्यू क्या होगी, क्या लिखा जाएगा? व्हाट विल यू राइट फॉर पिच? पिच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कुलर पाथ्स। पिच बेसिकली क्या होता है, तो मैं फिर से फॉर्मूला बता रहा हूँ। पिच बेसिकली होता है वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, मतलब द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब पैरेलल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड को कैसे लिखेंगे आप? पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पर है v cos 60, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb, क्योंकि पूरा पूरा सर्कल बन रहा है ना, ध्यान से देखो, तो कंप्लीट सर्कल इज बीइंग फॉर्म्ड हियर। तो जब भी पूरा सर्कल बने तो टाइम पीरियड की वैल्यू तो 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कंप्लीट सर्कल बने तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb होती है ना। तो देखिए सर,
v की वैल्यू 4 into 10 to the power 5, cos 60 की वैल्यू 1/2 into 2 pi m, 2 into pi की वैल्यू 3.14 into m 1.6 into 10 to the power minus 27 divided by charge की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 into magnetic field 0.3. सॉल्व कर लोगे कभी फुर्सत में बैठ के? बोलो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं. अरे कुछ तो बोलो, क्या हो गया? तुम लोग क्यों सदमे में हो? Yes, sir. नोट कर लिया हो तो बता दीजिए ताकि हम लोग आगे बात करें. Done, sir. ठीक है, अब सुनिए. टिल नाउ we discussed about the force acting on the charge particle. चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्सेस हैं उस पे हमने बात किया है कि if we'll keep a charge particle into magnetic field, so that charge particle will experience a force and we talked about that force, है ना? हमने उस फोर्स पे बात किया and that force we have already talked about. ठीक है, कि उस फोर्स की जो वैल्यू है वो फोर्स की वैल्यू हम जान गए हैं कि QVB sin थीटा होती है. अब बेसिकली बेटा एक बात समझो, अब जो हम फाइंड करने वाले हैं वो टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर. 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 अब हम यही फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करेंगे, but this time we are going to find this magnetic force not on the charge, rather we are going to find this magnetic force on the current carrying wire. अब करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स को समझो. तो देखो बेटा, इस बात के लिए आप ऐसे समझिए कि लेट्स से दिस इज अ वायर. मान लीजिए कि ये कोई वायर है आपकी. अब एक बात तो बहुत ऑब्वियस है ना कि बेटा अगर किसी वायर में करंट फ्लो करेगा, मुझे बताइए, किसी वायर में करंट फ्लो करेगा इसका मतलब है कि उसके अंदर चार्जेस मूव करेंगे. भाई करंट फ्लो करने का मतलब है कि चार्जेस मूव होंगे तभी करंट फ्लो करेगा. तो अगर चार्जेस मूव हो रहे हैं और करंट फ्लो कर रहा है, सोच के देखो बेटा क्या हो गया. अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है ना. तो इसी तरह से अगर मैं कोई वायर ले रहा हूं तो इसके अंदर तो बहुत सारे चार्जेस हैं और करंट फ्लो करेगा तो बहुत सारे चार्जेस मूव करेंगे और चार्जेस मूव करेंगे. मान लो कि आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. मान क्या हो गया ये, मान लो कि आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो आप मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा होगा अगर करंट हम इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं तो? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन? किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव कर रहा होगा या नहीं? विद अ वेलोसिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अरे बोलो. Yes, sir. मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मान लो, ये हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं, मान लो कि इस वायर की लेंथ या इस कंडक्टर की लेंथ L है. अब इसमें कुछ और भी चीजें हम मानेंगे, वो क्या क्या मानेंगे मैं बताता हूं. ए मान लो, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं ए है. इसमें हम एक और चीज मान लेते हैं कि दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. यह मान लेते हैं कि नंबर डेंसिटी, स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये n है. इसका क्या मतलब हुआ? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है? इसका दूसरा मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब क्या लिख सकते हैं? AL. समझ रहे हैं आप? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय A into L. A into L क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ दिस वायर. ठीक है, बिकॉज A इज द एरिया
और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम बन जाएगा। अब मेरी बात सुनो, सुनोगे या छोड़ दूं? कोई रिस्पॉन्स नहीं। आज पता नहीं ये लोग कसम खा गए हैं कि लोग बोलेंगे नहीं। अरे बताऊं? अच्छा, तुम लोग आज इतने शांत क्यों, क्या हो गया है? देखिए सर, मैग्नेटिक फोर्स, अब मैं जो जो बता रहा हूँ वो सुनते चलिए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी वन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे अगर आप मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, अब समझना, आपको जल्दी समझने की कोशिश करिएगा। किसी एक पे अगर फोर्स निकालूं तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं ये वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो माइनस ऑफ ई इनटू वेलोसिटी विथ विच दिस इलेक्ट्रॉन इज रनिंग इनसाइड द कंडक्टर। और आपको मालूम है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो द वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन विल मूव इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd क्रॉस b वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स लिखा है। ये माइनस साइन क्यों आया? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे ऐसे तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स है। तो इसमें अगर मान लो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन का फोर्स अगर होगा तो सब पे इतना इतना फोर्स लग रहा होगा, और वो 10 टाइम्स आप ऐड करोगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है ना, तो हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं पहले, ठीक है? ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? कैपिटल एन कितना होगा? हमने बोला स्मॉल एन की वैल्यू, मतलब स्मॉल एन क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इतना लिख सकता हूं? बोलना पड़ेगा भाई। तो चार्ज नेट को मैं क्या लिख सकता हूं? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? ई एन ए एल लिख सकता हूं। तो इसका मतलब मैं टोटल फोर्स की वैल्यू को लिखूं तो टोटल फोर्स की वैल्यू को क्या लिखूंगा? तो नेट फोर्स अगर मैं लिखूंगा, नेट फोर्स, तो एक का फोर्स माइनस ऑफ ई इंटू वी डी क्रॉस बी, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ई एन ए एल से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप यहां तक नोट करिए, मैं आगे बताता हूं। ई एन ए एल लिखा हुआ है ये, तो पहले आप यहां तक नोट करिए, मैं आगे बताता हूं। ये टोटल चार्ज मत लिखो, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसे ही टोटल चार्ज आ जाएगा। ये नोट करके बताओ ताकि हम इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकें। Done. वेरी गुड। अब देखो, इतना अगर आपने समझ लिया है तो अब इसको थोड़ी सी बात और समझिए। आपका लास्ट स्टेप मैं दोबारा लिख देता हूं कि फोर्स आपने लिखा है माइनस ऑफ ई इंटू वी डी क्रॉस बी, और इसको मल्टीप्लाई आपने किया एन ए एल से। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा बेटे कि एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि डीएल जब आप लेते हैं तो डीएल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, वो करंट की डायरेक्शन में होती है। डीएल की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन में होती है। तो मैंने आपसे बोला था कि मैग्नेटिज्म के केस में ऑल्दो लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट मैग्नेटिज्म के केस में लेंथ की अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, और वो उसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगी? करंट की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे यूज होगा, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पर जो लेंथ है ना, ये भी वेक्टर है। नहीं, यही बात समझिए, लेंथ भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। लेंथ भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। पक्की बात? अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, आप एक बात मुझे और बताओ, ए क्रॉस बी अगर है, 11th में शायद आपने पढ़ा होगा, आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता। ए क्रॉस बी को मैं माइनस बी क्रॉस ए लिख सकता हूं या नहीं? सोच के देखो, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हाँ, दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जैसे आप आई क्रॉस जे करें, तो ये वैल्यू जे क्रॉस आई के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, बट डायरेक्शन वाइज ये ऑपोजिट होगी। समझ रहे हो आप? ठीक है? क्या हुआ? नहीं समझे? ठीक है, तो इसको देखो, इस फोर्स को मैं फर्दर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इस फोर्स को लिखने के लिए मैं क्या लॉजिक यूज करूंगा वो मैं आपको बताता हूं।
यहाँ पर जो अपन लॉजिक यूज कर रहे हैं वो लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए कि L इंटू वीडी ये वैल्यू अगर निगेटिव है, L क्रॉस वीडी, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं L क्रॉस वीडी की वैल्यू को निगेटिव कह रहा हूं तो वीडी क्रॉस L अगर मैं कर दूं तो इसी वैल्यू को मुझे क्या कहना पड़ेगा, पॉजिटिव। सोच के देखो, समझ रहे हो? तो यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पहले इस बात को समझो, इस स्टेप को मैं ऐसे लिख दूं, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ E, मैं B को एज इट इज रहने दूं, इसको मैं कर दूं VD क्रॉस ऑफ L कर दूं, ठीक है, इनटू B इसके साथ इनटू N इनटू A, ऐसे लिख दूं। तो VD क्रॉस L को अगर मैं ऐसे चेंज कर दूं माइनस ऑफ E, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ L क्रॉस VD, देखिएगा, इनटू B इनटू N, थोड़ा सा वेक्टर का खेल है। मैंने पहले क्या किया पहले मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किसके फॉर्म में लिख दिया, VD और L के फॉर्म में, VD क्रॉस L। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने L क्रॉस VD किया, तो जब VD क्रॉस L को L क्रॉस VD करोगे तो माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करोगे या नहीं? Yes, sir. तो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, तो इसको आप फाइनली आप ये कह सकते हैं कि दिस विल बिकम इक्वल टू, अब इसका सबका मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर लिखा जाए तो दिस होल विल बी रिटन एज इक्वल टू E इंटू N इंटू A इंटू VD L इंटू B, और L क्रॉस B या L इंटू B को आप लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि ये L क्रॉस VD को आप साइन थीटा लिख सकते हैं ना हाँ. भाई, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो A क्रॉस B कैन बी रिटन एज AB साइन थीटा, ठीक है। मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या है? I. वेरी गुड, तो दिस वैल्यू इज I, तो दिस कैन बी रिटन एज I into L into B times of sin theta. This is the magnetic force that acts on a current carrying wire which when placed in magnetic field. यहाँ पे थीटा किसके बीच आप एंगल लोगे, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बीच का एंगल, या करंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल। आप ये भी कह सकते हो कि कंडक्टर की लेंथ का डायरेक्शन वही होगा जो करंट की डायरेक्शन है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का जो एंगल है वो थीटा लिया जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात, अगर इसी फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते तो इसको लिखा जाता I इंटू L क्रॉस ऑफ B, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते तो ये ऐसे लिखा जाता। ठीक है सर, ये नोट करिए जल्दी से। Done, sir. वेरी गुड। इसका मतलब है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी गिवन बाय I इंटू L क्रॉस ऑफ B। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। थोड़ा सा ये लेंदी चैप्टर है, इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं। ठीक है, तो खैर इसी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने पड़ जाते हैं, तो ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रख लो बस इस चैप्टर तक। इसके बाद इससे थोड़ा सा लेंदी फॉर्म का चैप्टर आता है, एक ऑप्टिक्स, मतलब रे ऑप्टिक्स, और थोड़ा वेव ऑप्टिक्स। खैर, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, ये तो आई, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि सर ये देखिएगा, ये एक सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक पोल है, ये एक सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक पोल, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक पोल का नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, और इसके बीच में ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक पोल का रेडियस R है। ठीक है, तो जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ये कभी सुना होगा शायद आपने बचपन में। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B, तो आपको बताना है फोर्स ऑन द वायर कितना होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर व्हिच इज प्लेस्ड बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स? ये दो मैग्नेटिक पोल के बीच में जो ये रखा हुआ है ये वायर, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा? What would be the value of magnetic force on this wire which is placed between the two magnetic poles?
हो गया? देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपली आपको मालूम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर विल बी सिंपली रिटन एज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी। एक बात याद रखो, ये जो एल है ना वायर का, इस एल पे याद रखो ये एल लेंथ है, ऑब्वियसली इट इज लेंथ, बट दिस इज दैट लेंथ विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ ऑफ वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या ये मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है उसमें जो ये लेंथ है उसकी बात हो रही है। ये लेंथ का ये मतलब नहीं कि पूरी लेंथ, अगर मान लो ये वायर की पूरी लेंथ, मान लो ये वायर ऐसे है, इसकी पूरी लेंथ 10 मीटर है एंड इसका सिर्फ और सिर्फ लेट्स से कि ओनली 2 मीटर ऑफ द पोर्शन इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ इसी 2 मीटर पे लगेगा सर, पूरे वायर पे नहीं लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? ठीक है, अगर वायर ऐसी है तो इसके सिर्फ 2 मीटर पे फोर्स लगेगा, पूरे वायर पे नहीं लगेगा। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि सर ये जो दो मैग्नेटिक पोल आपको नजर आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसी रीजन में लाई करेगी, मुझे आप बता सकते हो कि इस वायर के कितने लेंथ पर फोर्स लगेगा? तो भाई जितना लेंथ उसका मैग्नेटिक फील्ड में है, और मैग्नेटिक फील्ड कितने लेंथ में, हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहां से यहां तक ही तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। मतलब आपको नहीं लगता कि मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जिस्ट इन अ लेंथ ऑफ 2r? टेल मी यस और नो। मतलब वायर की वो Yes, sir. लेंथ which is inside the magnetic field will be exactly equal to 2r होगा या नहीं होगा बेटा? L की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 2r, because this is the length which is inside the magnetic field। मतलब लेंथ ऑफ द वायर जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो डायमीटर के बराबर है। किसके बराबर है? डायमीटर के बराबर। समझ में आई बात? Yes, sir. तो अब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इंटू 2r इंटू b, b की वैल्यू दे रखा है, ये आंसर है, खत्म। मुझे इस क्वेश्चन में बस एक बात समझाना था कि ऐसा नहीं है कि अगर होल वायर इज नॉट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा पूरे वायर पे ही फोर्स लग रहा होगा। इट इज नॉट दैट रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। बेसिकली होता यह है कि जितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जितना पोर्शन, सिर्फ उसी पोर्शन पे फोर्स लगता है, एंड इफ द पोर्शन इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो उस पोर्शन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। हो गया, आगे बढ़े। सर वो थीटा किस यहाँ पर पोजीशन थीटा था? की वैल्यू, हाँ थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो थीटा मैंने बोला करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो अगर आप यहाँ पर थीटा देखें तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। डिड यू अंडरस्टैंड? यस यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो ऐसा सिंपल सा, बिल्कुल सीबीएसई में एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको। सीबीएसई में बोला गया कि साहब ये कोई वायर है जिसमें करंट आई है, ये कोई वायर है जिसमें करंट आई है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है ना, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया एंड दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपसे वायर का लेंथ नहीं उसने बोला, आपसे बोला कि मास ऑफ वायर इज इक्वल टू m। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इफ वायर रिमेन्स स्टेशनरी in air, then find the value of मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपसे ये बोल रहा है कि वायर को हमने बिल्कुल हवा में छोड़ दिया, मतलब इस रीजन में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमने वायर को बस हवा में छोड़ दिया है और वो नीचे नहीं गिर रहा है। देखो आप किसी भी चीज को एयर में अगर रिलीज करोगे ना, किसी भी चीज को आप एयर में रिलीज करोगे तो वो चीज किधर आती है? वो हमेशा आपको मालूम है कि वो नीचे आती है। और वो क्यों नीचे आती है? तो आपको ये मालूम है कि वो इसलिए नीचे आती है क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज को हवा में छोड़ते हो तो mg जो है ना, mg वो उस चीज को नीचे लाता है। एम आई राइट? आपने किसी चीज को हवा में छोड़ दिया और वो फिर भी नीचे नहीं आ रही है। अगर आपने किसी चीज को हवा में छोड़ा एंड स्टिल इट इज नॉट कमिंग डाउन, वो फिर भी नीचे नहीं आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका बस एक ही मतलब है सर कि उस mg को कोई बैलेंस कर रहा है। देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच इज बैलेंसिंग mg। देखो इस वायर पे नीचे क्या फोर्स लग रहा होगा? तो देयर वुड बी अ फोर्स ऑफ mg, राइट? अब इस mg को अगर कोई बैलेंस कर ले तो ये नीचे नहीं आएगा।
और आपको क्वेश्चन में बोला गया कि दिस वायर इज नॉट फॉलिंग डाउनवर्ड्स, इसका मतलब है कि एमजी को कोई तो बैलेंस कर रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एमजी को आखिर कौन बैलेंस कर रहा होगा सर यहाँ पर? तो बहुत ऑब्वियस है कि इस पे इधर एक ही फोर्स और पॉसिबल लग सकता है, और वो किसके कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, करंट राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के मुझे बताओ तो कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताओ इस वायर में। अपवर्ड्स। वेरी गुड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी यहाँ पर वो अपवर्ड्स आएगी। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब इफ दिस वायर इज नॉट फॉलिंग, दिस मींस दैट मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। और मैग्नेटिक फोर्स होता क्या? तो I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो अगेन यहाँ पर थीटा 90 है बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स एंड आपका जो करंट है वो राइट की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस एंड करंट इज फ्लोइंग अलोंग x एक्सिस, तो एंगल इज 90 डिग्री। तो ILB sin 90, मतलब इसको आप लिख सकते हो ILB इज इक्वल टू mg। क्लियर हो गई बात? B आपको चाहिए था, तो B को आप लिख सकते हो mg बाई L इंटू बी, जिसमें M बाई L क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, M बाई L क्या चीज है? मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? वेयर L इज व्हाट? L इज लेंथ। ये मैं लिखना भूल गया हूं, तो लेंथ ऑफ वायर को आप L मान लीजिए। क्लियर है? तो B फिर दोबारा कहां से आ गया? सॉरी, I इंटू L। दिस इज योर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। Yes. नेक्स्ट लिखो, इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। अभी हमने एक वायर लिया और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो वी सॉ दैट कि इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स and that force is given as ILB sin theta, where theta is the angle between current and the direction of magnetic field. अब मैं आपसे कह रहा हूं कि instead of one wire I'll be taking two wires, और दो वायर अगर हम रखते हैं तो उसमें भी एक वायर दूसरे वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? विल अंडरस्टैंड दैट रीजन, बट आप टॉपिक का नाम लिखिए मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर्स। magnetic force between two current carrying wires, magnetic force between two current carrying wires। अब देखो क्या मतलब इसका। अच्छा, ये जो वायर मैं ले रहा हूँ ये इनफाइनाइटली लॉन्ग ले रहा हूँ ना। अभी जो ये दो वायर हम कंसीडर कर रहे हैं, दीज आर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स। मतलब मान लीजिए कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है सर, और ये दूसरी वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। ठीक है, ये दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है and they have been kept at a distance of r। इस वायर को एक नाम दे दो 1 और इस वायर को नाम दे दो 2। मुझे आप एक बात बताओ कि जब भी कोई भी करंट कैरिंग वायर आप कहीं पर भी प्लेस करेंगे, तो आपको एक बात तो पता है कि सर किसी भी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। बोलो हाँ कि ना, होगी या नहीं होगी? ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप किसी वायर को कहीं पर प्लेस करोगे तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, विदाउट एनी डाउट होगी। अब पॉइंट ये कि सर उसके अराउंड जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये जो दूसरी वाली वायर है वो पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में अज्यूम करी जा सकती है या नहीं? हाँ, yes sir. बिल्कुल करी जा सकती है। मतलब वी कैन अज्यूम दैट कि द वायर 2 इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1, एंड सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं कि वायर 1 इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो वायर 1 है वो 2 के मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये जो वायर 2 है वो इस 1 के मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि बोथ द वायर्स आर इन द मैग्नेटिक फील्ड due to another wire, and hence because they are in the magnetic field, so they will experience the force। ठीक है, अब बात समझो फोर्स कैसे निकालेंगे हम। जैसे अगर हम फोर्स निकालने वायर नंबर 1 पे, तो ये फोर्स किसके, बिकॉज ऑफ विच वायर देयर विल बी दिस फोर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस फोर्स विल बी देयर बिकॉज ऑफ द वायर नंबर 2। अग्रीड? ये फोर्स क्यों लगेगा? तो ये वायर 2 के वजह से लगेगा। This force will act due to the wire 2। करेक्ट है? बोलो ना। Yes sir. तो आप क्या लिखेंगे? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट। तो करंट किसका? जिसमें फोर्स लग रहा है।
इनटू लेंथ, तो मान लो अभी इसकी लेंथ वैसे तो इनफाइनाइट है, बट अभी किसी एल पोर्शन में, मतलब एल लेंथ पे मैं फोर्स निकाल रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं इस इनफाइनाइट वायर के सिर्फ एल लेंथ पे फोर्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट ही इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं एल लेंथ ले रहा हूँ, समझना, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस पे किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी? I1 पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो किसका मैग्नेटिक फील्ड होगा? I1 का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा या I2 वाले का मैग्नेटिक फील्ड होगा? I2. I2, दिस कैन बी रिटन एज B2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 डिवाइडेड बाय L। देखो 1 वाला मैग्नेटिक फील्ड में है किसके? 2 वाले के मैग्नेटिक फील्ड में। तो 1 वाले पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, ठीक है। तो ये 1 वाला 2 के मैग्नेटिक फील्ड में और वही उस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो इसीलिए मैंने B2 लिखा है यहाँ पर। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ। L को इधर ले आओ, तो ये F12 I1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाऊं तो म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? बोलो। तो इस चीज को हम ऐसे भी कहते हैं, F12 भी नाम देते हैं इसको। इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैंने स्मॉल f कर दिया ना, इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। वायर के पर यूनिट लेंथ पे ये मैग्नेटिक फोर्स है। क्लियर? नोट करो, आगे बढ़े। तो अगर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ पे ये फॉर्मूला होता है, तो किसी भी लेंथ में अगर मुझे फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे? इस फोर्स को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो कि ये 1 मीटर का फोर्स है, ये समझो। तो अगर मुझे 10 मीटर पे फोर्स निकालना हो तो 1 मीटर वाले फोर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। डन? Yes. ऐसे ही अगर मैं फोर्स उस पे निकालूं 2 पे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 2 पे जब आप फोर्स निकालेंगे तो करंट किसका लेंगे आप? 2 का। लेंथ मान लो 2 का L। मैग्नेटिक फील्ड अब किसकी ली जाएगी? 2 की अपनी मैग्नेटिक फील्ड या 1 की मैग्नेटिक फील्ड? 1. 1 की। बहुत सही बात। 1. तो इसको सिंपली आप लिख सकते हैं F21 बाई L कर दो इसको, तो ये हो जाएगा I2। 1 की मैग्नेटिक फील्ड भी आप लिखेंगे तो बस ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R, क्योंकि वो भी इनफिनिटली लॉन्ग वायर है। तो ये F21 को आप लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू R। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन 1। अगर आप ध्यान से देखो तो बोथ ऑफ द फोर्सेस आर इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस, मतलब एक वायर जो दूसरे वायर पे फोर्स लगा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दोज फोर्सेस आर इक्वल, राइट? मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों वायर पे एक दूसरे के मतलब ड्यू टू वन अनदर जो लग रहा है, इस फोर्स की वैल्यू इक्वल आ रही है। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया सर फोर्स ऑन एनी लेंथ ऑफ द वायर। तो आप जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ कि मैं आपसे ये कहूँ कि दिस इज योर इनफिनिटली लॉन्ग वायर, इसमें करंट मान लो 4 एम्पियर है, एंड दिस इज योर इनफिनिटली लॉन्ग वायर, ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर है। इसके ऊपर वी हैव प्लेस्ड अ रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप ऐसे रख दिया हमने। रेक्टेंगुलर लूप इज ऑफ PQRS, इसका नाम PQRS है। रेक्टेंगुलर लूप की जो लेंथ है, ये मान लीजिए कि
चलो मैं मीटर ही में ले लेता हूं, ये मान लो 2 मीटर है एंड द ब्रेथ ऑफ दिस इज, या इसको 4 मीटर मान लेते हैं, 4 मीटर है, ब्रेथ ऑफ दिस इज 2 मीटर और ये जो हाइट है फ्रॉम दिस वायर दिस इज 1 मीटर। तो आपको बताना है कि फोर्स ऑन पी क्यू आर एस, ये वाला जो लूप है इस पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन दिस पी क्यू आर एस इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप। अब क्या करें सर? चलो, कैन यू टेल मी कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और ये वाला वायर इससे पैरेलल रखा हुआ है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको समझ में आ रहा हो या नहीं भी पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं भी है, तो मुझे एक बात बताओ कि इस PQ वायर पे हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स ऑन PQ? Current 4A. ऑफ कोर्स करंट 4A। इसका मतलब है कि अगर मैं PQ पे फोर्स निकाल रहा हूं तो व्हाट वुड आई राइट? आई विल सिंपली राइट फोर्स ऑन PQ will be simply written as current in PQ, and current in PQ is 2 ampere multiplied by length of PQ, length of PQ is 4 multiplied by the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड किसका? ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर का। और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे आप? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे म्यू नॉट आई की वैल्यू इसकी कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। 2 पाई एज इट इज रहने दो, आर आर का मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे चाहिए ना, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज 1। अग्रीड? टेल मी यस और नो। This 2 and this 2 cancel out, so this will be equal to 16 mu naught upon pi। बाद में हम इसकी वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट और पाई की वैल्यू हम बाद में प्लेस करेंगे। ये बात सबको समझ में आई? प्लीज टेल मी यस और नो। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर ये लूप रखा हुआ है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो PQ है ये वाला वायर, अरे बोलना पड़ेगा यार, PQ जो ये वायर है इस पे तो मैग्नेटिक फील्ड इसी वायर का लग रहा है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का। Yes. पहली बात, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? ये अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऐसे रखा हुआ है तो इस पॉइंट पे मैग्नेट, वेरी गुड, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट किधर फ्लो कर रहा है? इधर, तो इस पे जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। बिल्कुल सही कह रहे हो, बोलते हो मगर बहुत मध्यम मध्यम धीमे धीमे बोलते हो, डाउनवर्ड लगेगा ये फोर्स। क्लियर है? क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। ऐसे ही अगर फोर्स ऑन RS निकालें, RS, तो RS पे फोर्स कितना होगा? फोर्स मतलब करंट which is again 2, length which is again 4 multiplied by the magnetic field which will be written as mu naught upon 4 into 2 pi into distance। इस वाले का डिस्टेंस इस वायर से जो है वो, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है, बोलो। फोर्स डाउनवर्ड कैसे सर? क्या नहीं समझा, फिर से बोल। फोर्स डाउनवर्ड कैसे सर? ओके, फोर्स डाउनवर्ड कैसे, बहुत बढ़िया। देखो ये वाला जो वायर है PQ, उस पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी एक्ट कर रही है? इस वाले वायर की। और इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, प्लेस योर सेंटर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट फिंगर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे तो इट विल बी अलोंग द Z एक्सिस और सेंटर फिंगर वुड बी अलोंग X एक्सिस। तो आप देखो थंब आपका डाउनवर्ड आ रहा है, आप लेफ्ट हैंड के ऐसे फिंगर्स को रख के देखो, you place the central finger of your left hand along X axis and place the first finger of your left hand along positive Z axis, so you will find that your thumb will be pointing towards the negative Y axis। बोलो। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है मैग्नेट आउटवर्ड है, कैसे आया आउटवर्ड? देखो तो नीचे है। नीचे आउटवर्ड है तो नीचे है।
नहीं समझ आया तुमको डायरेक्शन? अरे देखो, इस वायर, ये जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर ये पी क्यू है ना, ये पी क्यू, इस पे अगर इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ये आउटवर्ड आएगी। पहले ये बताओ, ये तुम्हें समझ में आया कि आउटवर्ड कैसे आई? Yes. पक्का? Yes, sir. तो आप देखो, अब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। व्हाई यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? ध्यान से देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, मेरी बात समझिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, ये सेंटर फिंगर इज केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, एंड दिस फर्स्ट फिंगर शुड बी केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है ना, तो आउटवर्ड का मतलब ऐसे बाहर आएगा मेरी तरफ। अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे डायरेक्शन में होगा ये, और सेंटर फिंगर इधर। तो देखो, थंब डाउनवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो, Oh, yes. व्हाट आ रहा है. आ रहा है सर? पक्का सर? तो अगर थंब डाउनवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड इज द Center डायरेक्शन ऑफ finger दिस current के डायरेक्शन, जी। सेंटर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना है. Yes, center finger should always be kept in the direction of current, and the first finger should always be pointing towards the magnetic field. So in that case, जो thumb होगा, that will give you the direction of force. सर फिर तो अपवर्ड आ रहा है. Upward कैसे आएगा? Left hand, left hand. अच्छा, लेफ्ट हैंड. हाँ, तो नाम ही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो which hand you gonna use for this rule? Obviously left hand. तो लेफ्ट हैंड के फिंगर को आप एक्स एक्सिस के अलोंग रखो, और फर्स्ट फिंगर को आप जेड एक्सिस के अलोंग रखो, तो देखो थंब आपका डाउनवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, यस. ठीक है, अच्छा, उसका डाउनवर्ड आया तो ऊपर वाले का अपवर्ड आएगा। देखो मैं बताता हूँ पहले, तो ये सॉल्व करो, तो एफ आर एस को अगर हम लिखेंगे तो एफ आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 16 म्यू नॉट अपॉन 3 पाई, और ये कैसे आएगा? तो दिस विल बी अपवर्ड, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट गेट्स रिवर्स्ड ना इन दिस केस, तो ये अपवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो एक फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड और एक फोर्स आ रहा है अपवर्ड, मतलब बोथ द फोर्सेस आर ऑपोजिट। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे? व्हाट विल बी नेट? कौन बताएगा? 0. नहीं, जीरो कैसे? दोनों वैल्यू सेम थोड़ी है। ये एक फोर्स अपवर्ड आ रहा है और एक फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, तो नेट के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट इट विल नॉट बी जीरो, राइट? मतलब आप लिखेंगे 16 म्यू नॉट अपॉन पाई माइनस ऑफ 16 म्यू नॉट अपॉन 3 पाई। दोनों को आपको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। ठीक है, तो कर लोगे? सब्ट्रैक्ट क्यों किया? बिकॉज बोथ द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, so that is why you need to subtract. सर कॉइल के ब्रेथ पे फोर्स नहीं ढूंढेंगे. बिल्कुल, अभी आते हैं उसी बात पे। पहले ये समझ आ गया आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. yes. ठीक है, ब्रेथ पे मैं आऊंगा, ये रिजल्ट है ना? अब इस बच्चे ने जो बोला है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। मैं वेट कर रहा था कि कोई पूछे। ब्रेथ पे फोर्स लगेगा, बट बात समझे होगा क्या? मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूँ। देखो एक बात समझो, मैं आपसे कहूँ ये ब्रेथ वाला जो पोर्शन है इसको देखो, ठीक से देखो। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे जा रहा है, ठीक है बेटे? और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं मैं वायर का, और यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, या आप ऐसे सोच लो, तो ये वाला पॉइंट जितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उतने ही डिस्टेंस पे ये भी पॉइंट होगा या नहीं होगा? प्लीज बोलो। Yes, sir. मतलब सेम हाइट पे मैंने दो पॉइंट्स लिए, इस पे अगर फोर्स की डायरेक्शन राइट है मान लो, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? लेफ्ट होगी या नहीं होगी? Yes, sir. पक्का?
Yes. मुझे एक बात बताओ, बाय द सिमेट्री, अगर ये वाला पॉइंट भी एल हाइट पे है, ये वाला पॉइंट भी एल हाइट पे है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, ठीक है, और ये लेंथ भी सेम लिया है मैंने, तो आप एक बात बताओ, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल और ऑपोजिट आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. ऐसे ही सोचो, अगर आप किसी इस पॉइंट पे आ जाओ, मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को जितने हाइट पे माना है उतनी हाइट पे इधर भी एक पॉइंट मान लो कि ये एल डैश पे हमने इधर भी एक पॉइंट लिया, इधर भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये फोर्स एफ डैश आएगा तो ये फोर्स एफ डैश आएगा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये ब्रेथ पे जो फोर्सेस आ रहे हैं हर पॉइंट पे, वो इक्वल एंड ऑपोजिट है या नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एफ और एफ डैश इक्वल है, बट इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए दूसरा पॉइंट इधर है या नहीं है, सोच के देखो। इसी तरह से इस पॉइंट पे चाहे जितना भी फोर्स लगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर एक पॉइंट है जिसपे फोर्स ऑपोजिट है। नहीं आया? Yes. तो ये फोर्सेस क्या करेंगे, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, इस पॉइंट का फोर्स, ये पॉइंट का फोर्स इस पॉइंट का फोर्स कैंसिल कर देगा। इसका मतलब ब्रेथ पे ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे ऑन द राइट साइड जिसका फोर्स कैंसिल करेगा ब्रेथ का लेफ्ट वाला पार्ट। इसीलिए ब्रेथ के कारण नेट फोर्स कितना होगा, ब्रेथ के और ड्यू टू द ब्रेथ द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ऐसा लेंथ के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेंथ को देखो, लेंथ में अगर आप बात करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये अलग डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस इनफिनिटली लॉन्ग वायर, और ये वाला पार्ट अगर आप देखो, ऊपर वाला पार्ट, तो दिस इज एट अ डिफरेंट डिस्टेंस। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसलिए ये फोर्सेस ऑपोजिट हैं बट इक्वल नहीं है, इसलिए दे आर नॉट गेटिंग कैंसल्ड। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? नहीं समझे? Yes. ये वाले फोर्सेस ऑपोजिट हैं बट इक्वल नहीं है, बट ब्रेथ पे किसी भी पॉइंट का फोर्स इक्वल और ऑपोजिट दोनों है, इसलिए ब्रेथ वाले फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, लेंथ वाले फोर्सेस कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो रेस्ट कल बात करते हैं सर, आज इतना ही, बाकी डिस्कशन कल करेंगे।